Hello friends, myself Ankur Agrawal here to discuss with you today one of the important topic of organic chemistry, that is nucleophilic substitution reaction. Now see, what is nucleophilic substitution reaction? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन मीन्स सब्स्टिट्यूट हो रहा है, कोई चीज़ आ रही है और एक दूसरी चीज़ बाहर जा रही है। तो यहाँ पे देखो, हम फॉर एग्जांपल लेते हैं आर एक्स, ठीक है। तो x की जगह हम यहाँ पे एक बार L लिख लेते हैं। L मीन्स लिविंग ग्रुप, एनी लिविंग ग्रुप that may be halogen. This reaction is shown by haloalkanes, so Rx. Okay, so Rl in the presence of any nucleophile. Nucleophile may be negatively charged or neutral. In the presence of nucleophile give rise to Rnu. Plus में L negative. So here a living group is replaced by a nucleophile, is substituted by a nucleophile. So it is a nucleophilic substitution reaction. This reaction can proceed by two mechanisms, SN1 and SN2. Okay, first we will discuss SN2 reactions. What SN2 means? Nucleophilic substitution second order reaction or nucleophilic substitution bimolecular reaction. Okay, so this is a nucleophilic substitution second order reaction. Okay, so this is a nucleophilic substitution reaction. What the term second order means here is, second order means the rate of the reaction is in the rate law expression. Okay, so what is its rate law expression of this chemical reaction? In the case of SN2 reaction is rate of reaction is directly proportional to concentration of nucleophile raised to power 1 and concentration of RL raised to power 1. It means the rate of reaction is directly dependent on concentration of nucleophile as well as concentration of the our reactant. Okay, both. So here we can directly proportional, we can replace by K, putting a constant. So this is the rate law expression. So what is order? Order is the sum of these powers. Okay, so 1 plus 1 is 2. So this is a second order kinetic reaction. ठीक है, so यहाँ पे ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कैसी है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल और आरएल दोनों पे डिपेंड कर रहा है. लेट अस नाउ सी मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, एंड दिस इज आल्सो बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन. What the term bimolecular means? It means the product is formed by collision of two molecular species in the reaction. Okay, so now mechanism. It is a one step reaction. First of all, single step reaction this is. Okay, तो अभी यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है? ये वन स्टेप रिएक्शन है. हाउ दिस प्रोसीड, लेट अस सी. Rx is here suppose. इस R को मैं कुछ भी ले सकता हूँ. इस R को मैं सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले रहा हूँ. तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है तो एक सी एटम मैंने यहाँ लिखा CH3 H C2H5 और यहाँ पे एक और Cl. ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ. Okay, this is a chiral carbon. Chiral carbon means the carbon to which attached all the four groups are different. Okay, this is asymmetric, so this is optically active. Okay, so अभी हम इसका chemical reaction करा रहे हैं with any nucleophile. अभी होता क्या है? This is nucleophile taken here is a strong nucleophile. Okay, strong nucleophile favors SN2 reaction. Why it is so? बिकॉज ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस बॉन्ड के टूटने से पहले जो बैक साइड से इस पे अटैक कर जाएगा. तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेज बनती है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा
पेंटावेलेंट कार्बन जो है वो एग्जिस्ट करता है, विच इज नॉट स्टेबल, okay. So chlorine is leaving from here, this is the leaving group, and nucleophile is getting attached here, okay. So now further this will form CH3 C C2H5 H, okay. So see inversion of configuration यहाँ पे जो है वो हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो क्लोरीन था पहले वो इस साइड था और अभी वो दूसरी साइड है। सो सी यहाँ पे क्या हुआ है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, यानी कि अगर स्टार्टिंग में डी फॉर्म थी तो वो किस में कन्वर्ट हो गई होगी, एल फॉर्म में, और अगर एल फॉर्म थी तो वो कन्वर्ट हो गई होगी डी फॉर्म में। अभी देखते हैं डी फॉर्म और एल फॉर्म क्या होते हैं, ठीक है। आपको पता है ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे देखते हैं, ठीक है। हम करते क्या है, any source of light लेते हैं where there is a light which is in any plane, ठीक है। अभी हम इस लाइट को जो है निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं, दो प्रिज्म इन्वर्टेड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसके ये जुड़े हुए कनाडा बाल्सम की हेल्प से, इसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म, ठीक है। इससे हम पास करवाते हैं, दिस गेट कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट, and now this plane polarized light if passed through solution and when it is observed with the help of analyzer, okay. So what happens is if this plane polarized light is rotated left side, then it is levorotatory, and if it is rotated right side, then it is dextrorotatory. So अगर D फॉर्म L फॉर्म में कन्वर्ट हुई है या L फॉर्म D फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, एंड दिस फेनोमेनन अकर हियर, ओके। सो हम SN2 के अंदर जो जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लिखते हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर SN2 रिएक्शन, ओके। सो फर्स्ट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस here, okay. Second point is that this is a one step reaction, okay. So जो ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस इन्वर्जन को हम अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जब रेनी सीजन होता है और अगर बहुत तेज विंड है तो उसमें क्या होगा, जो हमारा अम्ब्रेला है वो इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो रहा है, D है तो L में कन्वर्ट हो गई, L है तो D में कन्वर्ट हो गई, सो दिस इज अ अम्ब्रेला इन्वर्जन, ओके। सो एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वेल्डन इन्वर्जन, वेल्डन इन्वर्जन भी इसको बोलते हैं, ठीक। अम्ब्रेला इन्वर्जन और वेल्डन इन्वर्जन इसको बोलते हैं, ये वन स्टेप रिएक्शन है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन है, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। हमारा कार्बन यहाँ पे जितना कम स्टेरिकली हिंडर्ड होगा उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव होगा। सो जो टर्शियरी कार्बन है, एक ऐसा कार्बन जिससे 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो कार्बन लीस्ट रिएक्टिव होगा। जो सेकेंडरी कार्बन है वो मोर रिएक्टिव होगा, और प्राइमरी जो है वो मैक्सिमम होगा, और उससे भी ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका मिथाइल ग्रुप वाला का, ठीक है। मिथाइल ग्रुप से अगर कोई डायरेक्टली लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, okay. So reactivity is inversely proportional to steric hindrance here. What is steric hindrance? Steric hindrance means कि वो कितना घिरा हुआ है, कितने बल्कि ग्रुप से घिरा हुआ है। तो जितना ज्यादा वो बल्कि ग्रुप से घिरा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में उतना ही डिफिकल्टी होगी, isn't it? So fourth point क्या है यहाँ पे? फोर्थ पॉइंट है हमारा कि जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को कौन फेवर करता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है। तो देखो SN2 रिएक्शन में जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या है? एक तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेल्डन इन्वर्जन, यानी कि डी फॉर्म अगर है तो वो एल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर एल फॉर्म अगर है तो वो डी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज अ वन स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो रही है, पेंटावेलेंट कार्बन एज ए ट्रांजिशन स्टेट बीच में फॉर्म हो रहा है। थर्ड इज रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक एंट्रेंस, तो टर्चरी जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, सेकेंडरी और ज्यादा रिएक्टिव, प्राइमरी और ज्यादा रिएक्टिव, और जो मिथाइल ग्रुप है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स द SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को कौन फेवर करता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है। रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप। ओके, इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो रिएक्टिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप टू लीव। जो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी है लीव करने की, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है कि जो RI है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। स्पेसिफिकली दिस रिएक्शन इज मोस्टली शोन बाय हैलाइड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैलाइड्स का ही डिस्कशन कर रहे हैं। RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। तो RF जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ मिनिमम है, ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम है तो ये लिविंग ग्रुप बैड लिविंग ग्रुप है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है मिनिमम है, बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, आयोडीन एक बड़ा एटम है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, तो वो बॉन्ड इजीली टूट सकता है। नेक्स्ट इज एप्रोटिक सॉल्वेंट। जो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं दे फेवर SN2 रिएक्शन। ओके, तो प्रोटिक एप्रोटिक क्या होता है? प्रोटिक मींस द सॉल्वेंट इन विच प्रोटॉन इज लूज, फॉर एग्जांपल H2O, ROH, ये होते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट्स। एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड, CH2, CCl4 एटसेट्रा। ठीक है, ये होते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि ये जिनके अंदर H+ लूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो H+ लूज नहीं हो रहा है। बेसिकली अगर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो वो क्या करता है? इसकी जो आयनाइजेशन है उसको इंक्रीज करता है और कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो जो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो SN1 रिएक्शन को फेवर करता है, और जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो फेवर करता है SN2 रिएक्शन को। इसके बाद है नो कार्बोकैटायन, सो 6th इज एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, एंड 7th इज नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड हियर, सो नो रीअरेंजमेंट इज देयर, ब्रेक। सो SN1 रिएक्शन अभी हम स्टार्ट करते हैं। SN1 रिएक्शन मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? The reaction follows first order kinetics. Okay, so this is a unimolecular reaction and rate of reaction is directly proportional to RL whole raised to power 1. ठीक है, RL की पावर 1, and this can rate of reaction is equal to K into में RL की पावर 1. This is the rate law expression for this reaction, RLE. Okay, so यहाँ पे ये इस reaction का क्या है? रेट लो एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे जो ये कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है, दे और इनकी जो पावर्स है उसका सम कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हियर। ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अभी हम वो देखेंगे कैसे। इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। SN1 रिएक्शन कैसी है? 2 स्टेप रिएक्शन है। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रही है। तो 2 स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और जो सेकंड स्टेप है वो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। उन दोनों स्टेप्स को अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो उससे पहले कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ RL एंड इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन की क्या है? इंडिपेंडेंट है, एंड ओनली RL की कंसंट्रेशन पे जो है हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। लेट अस राइट द फर्स्ट स्टेप। ओवरऑल रिएक्शन जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था वो सेम होगा SN2 के लिए भी और SN1 के लिए भी। फर्स्ट स्टेप के क्या लिखा था स्टार्टिंग में? RL प्लस में NU गिव राइज टू RNU प्लस में लिविंग ग्रुप। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन।
यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। तो सपोज कि हमें वापस से वही सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लेते हैं, वही किरेल कार्बन, यहाँ पे हमें मिलेगा C2H5Cl। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट जो है, प्रोटिक सॉल्वेंट जो है ये पोलर बॉन्ड है, तो उसकी पोलरिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है, और जो कार्बोकटायन के का जो फॉर्मेशन है उसको फेवर करेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो भी कैसा होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे उससे पहले ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बोकटायन बनेगा, दैट इज CH3HC2H5। What is the hybridization of this carbocation? sp2 hybridized and this carbocation is triangular planar in shape. Okay, so step 2, what is step 2 here? Step 2 is the attack of nucleophile. Attack of nucleophile. न्यूक्लियोफाइल का जो है अटैक होगा स्टेप 2 में। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस तरीके से होगा हम देखते हैं। तो हम कार्बोकटायन जो हमारे स्टेप 1 में बना है उससे ले लेते हैं, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा बना है, इसके ऊपर हम अभी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं। तो देखने वाली बात ये, जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकटायन पे अटैक करेगा तो वो इस पे यहाँ से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है। शेप ट्रायगोनल प्लेनर है, दोनों साइड से अटैक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50% है, तो इसीलिए वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है। और हमारा जो यहाँ पे सपोज स्टार्टिंग में डी फॉर्म था, तो लास्ट में क्या बन रहा है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल बन रहा है। स्टार्टिंग में एल फॉर्म था तो भी लास्ट में इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल बन रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में डी फॉर्म लिया तो भी 50% डी 50% एल, स्टार्टिंग में एल फॉर्म लिया तो भी 50% डी बनेगा 50% एल बनेगा। एक बार हम इसको लिख लेते हैं, किस तरीके से डी एल बनेगा वो देखते हैं। C2H5 और यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देते हैं, और इसी तरीके से CH3, यहाँ C2H5 और यहाँ हम हाइड्रोजन लिख देते हैं। अब एक बार तो कि ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो इस साइड से अटैक कर सकता है या फिर इस साइड से, तो हम एक बार इस साइड जोड़ देते हैं और एक बार इस साइड से। तो डी एंड एल फॉर्म का क्या बनता है यहाँ पे, इक्विमोलर मिक्सचर। देखो, तो यहाँ पे स्टेप 2 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रहा था और जो कार्बोकटायन बन रहा था हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल प्लेनर है, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल जो है फ्रंट साइड से और बैक साइड से दोनों साइड से अटैक कर सकता है, और दोनों साइड से अटैक करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 50-50%। तो ये यहाँ पे जो, अगर सपोज हमने स्टार्टिंग में डी फॉर्म लिया है तो डी फॉर्म प्लस एल फॉर्म बन जाए, दोनों 50-50%। और क्या हो सकता है, एल फॉर्म अगर आपने लिया है तो भी डी फॉर्म प्लस एल फॉर्म बन जाए, दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर 50-50%। तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म इज फॉर्म्ड हियर व्हिच इज आवर रैसिमिक मिक्सचर, व्हिच इज कॉल्ड एज racemic mixture, and this is optically inactive in nature। optically inactive कैसे है कि डी फॉर्म प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जितना राइट साइड रोटेट करेगा उतना ही जो है एल फॉर्म वाला लेफ्ट साइड रोटेट कर देगा। तो जो नेट ऑप्टिकली जो नेट रोटेशन आएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट का वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसीलिए जो ये हमारा मिक्सचर है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सो रेसिमाइजेशन क्या होता है, रेसिमाइजेशन इज द फेनोमेनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट्स इनटू ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट व्हिच इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म। सो दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे रेसिमाइजेशन हो रहा है, रेसिमाइजेशन अकर्स हियर। सेकेंड पॉइंट इज दिस इज अ 2-स्टेप रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है 2-स्टेप रिएक्शन है, और इसमें जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, एंड दिस स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ये क्या है, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन है। सो दिस इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ये ही स्टेप जो है हमारा रेट डिटरमाइन करता है। इसीलिए हम जब रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उस रेट लो एक्सप्रेशन में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली लिखते हैं। वहां पे न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है क्योंकि फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो दिस इज अ 2-स्टेप रिएक्शन, दिस इज द सेकंड पॉइंट। And the third point is
This reaction is favored by protic solvents. Protic solvent means solvents which loses H plus ion in their solution. For example, water, H2O, any alcohol like methanol, ethanol, ROH. ठीक है, तो H2O और ROH. R here refer to CH3 or C2H5. Fourth point क्या है यहाँ पे SN1 रिएक्शन में? फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ब्रेक. तो SN1 रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट है रेसिमाइजेशन, कि SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे रेसिमाइजेशन हो रहा है, इक्विमोलर मिक्सचर बन रहा है D एंड L फॉर्म का, दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर. तो रेसिमाइजेशन यहाँ पे हो रहा है. सेकेंड इज टू स्टेप रिएक्शन. ये जो रिएक्शन है टू स्टेप रिएक्शन है. फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है. फर्स्ट स्टेप जो है स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन है, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन. थर्ड इज दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाय प्रोटिक सॉल्वेंट्स. प्रोटिक सॉल्वेंट जो है इस रिएक्शन को फेवर कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज दे अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन को क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, या फिर उसको जो है उसको उसके कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन को इंक्रीज कर रहे हैं या फेवर कर रहे हैं. ठीक है. फोर्थ इज रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है. कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को जो जो फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं वो सभी क्या करेंगे, रिएक्टिविटी को भी इंक्रीज करेंगे. ठीक है. तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट. अब टर्चरी जो कार्बोकैटायन होता है उसके अंदर कितने प्लस आई लगते हैं, 3 R ग्रुप से जुड़ा होगा टर्चरी कार्बोकैटायन मतलब. तो टर्चरी कार्बोकैटायन में 3 R ग्रुप्स का प्लस आई मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम स्टेबल होगा, मैक्सिमम रिएक्टिव होगा. तो टर्चरी कार्बोकैटायन जो है, तो देख रहे हो आप जो SN2 में जो ऑर्डर आ रहा था उसका जस्ट उल्टा आ रहा है. तो टर्चरी कार्बोकैटायन जो है वो मैक्सिमम स्टेबल है. देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, देन प्राइमरी, एंड देन मिथाइल. ओके. तो यहाँ पे हमें ये ऑर्डर देखने को मिलता है और यही ऑर्डर इसकी रिएक्टिविटी में भी फॉलो होगा. ठीक है. तो जो जो फैक्टर्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को इंक्रीज करते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे. नेक्स्ट, दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल. इस रिएक्शन में जो है वीक न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन को फेवर करते हैं. क्यों? क्योंकि जब वीक न्यूक्लियोफाइल जितनी देर में अटैक करेगा उतनी देर उससे पहले क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है. तो एक जो है हमें स्लो वो चाहिए. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रिएक्शन while weak nucleophile favors SN1 reaction. Next is reactivity is directly proportional to tendency of leaving group. ये वाला जो है ये SN2 और SN1 में सेम है, हम अभी अभी पढ़ के आए हैं. तो reactivity is directly proportional to tendency of leaving group. leaving group की जो tendency है लीव करने की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो RI की रिएक्टिविटी मैक्सिमम, देन RBr, देन RCl एंड देन RF. ओके. उससे अगला है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट. तो अगर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है देन इट मस्ट बी डन. ठीक है. मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ. जैसे कि सपोज ये है हमारा CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH3 है और यहाँ Cl है. हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एक्वस KOH के साथ. एक्वस KOH के साथ हम जो है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम एक्वस KOH के साथ करा रहे हैं. तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है कि आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ही बने. लेकिन यहाँ पे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ना बनके टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल जो है बनेगा. वो कैसे बनेगा? बिकॉज कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड हियर एज ए इंटरमीडिएट. कार्बोकैटायन क्या बनेगा? CH2 पॉजिटिव और यहाँ CH3. अब ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होके 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से ये H नेगेटिव हाइड्राइड आयन यहाँ से रिलीज होगा इस C से, और ये इस पे यहाँ पे हो जाएगा CH3 और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है. तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से ये जो है कार्बोकैटायन क्या हो रहा है? रीअरेंज हो रहा है. इसी तरीके से सेम 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी हो सकती है. ठीक है. जहां पे रिक्वायरमेंट होगी. तो इसी तरीके से 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी हो सकती है. ठीक. तो यहाँ पे
जो एक्वस केवेज से अगर हम कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा CH3 CCl CH3 CH3 टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड जो है बनेगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे नियोपेंटाइल क्लोराइड ले लें, यहाँ पे एक CH3 और लगा दें, तो क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है? तो यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी। ये हाइड्रोजन नहीं है, ये CH3 ग्रुप यहाँ से उठ के इस पे आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे जो है आपका एक और CH3 Cl यहीं रहेगा, ठीक है, ये CH3 ये CH2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका क्या बन जाएगा, टर्ट पेंटाइल क्लोराइड जो आपका बन जाएगा। ओके, थैंक यू।